Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmic Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 7th Maths and our chapter is Practical Geometry. So, student, in this chapter we learn about geometry. Okay, so you are familiar with a number of shapes. आपको पता है शेप्स क्या होते हैं. ओके, यू लर्न हाउ टू ड्रॉ सम ऑफ देम इन द अर्लियर क्लासेस. Okay, for example, you can draw a line segment of given length, a line perpendicular to given line segment, an angle bisector or circle, etc. Okay, now you will learn how to draw parallel line and some type of triangle. Okay, understand? So, student, we already know how to construct an angle or an angle bisector, perpendicular bisector of line segment, and a line perpendicular to a given line from a point. Okay, on the uh, outside the line, on the line, outside the line, using a ruler and a pair of a compass. Okay, in class 6 we learned that. Okay, now in this chapter we shall learn the construction of line parallel to a given line. Okay, construction of line parallel to a given line from a point outside it. In addition, we shall also learn about the construction of triangle when sufficient data is given. Before we start with the construction of a line parallel to a given line, let us revise a few relevant terms. First of all, what is parallel line? So, two lines in a plane are said to be parallel if they do not intersect each other and are equal distance apart everywhere. Okay, two lines in a plane are said to be parallel if they do not intersect each other and are equal distance apart anywhere. कहीं पर भी आप देखेंगे तो दोनों का डिस्टेंस कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, and they do not meet each other at any point. Okay, now what is transversal? We learn in previous chapter. Okay, what do you mean by transversal? It is a line that intersect two or more distinct line at distinct points. Okay, here T is a, अगर हम बात करें कोई दो लाइन को, अगर एक लाइन कट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पर, then we can say that it's a transversal. Okay, and that transversal intersect the two lines at distinct points, means different points. Okay, and now we will learn, and in chapter 5th we learn about transversal. Okay, and we also learn about alternate angle. Okay, what is alternate angle? If the transversal cut the line, so what is alternate angle? Alternate angles are angle of the exterior. See, alternate angle हमने किसे बोला? दो टाइप के एंगल्स मिलेंगे हमें. That is, when a transversal intersect two or more lines, it makes different kind of angle with those line. उन दोनों लाइन पर वो different kinds के angles draw बनाएंगे. Suppose these two lines, अगर ये कोई लाइन P है, ये कोई लाइन Q है, उसको अगर ट्रांसवर्सल T कट कर रहा है पॉइंट A एंड पॉइंट B पर, सो दे आर मेकिंग डिफरेंट सो मेनी एंगल्स वेयर इंटीरियर एंगल्स मीन्स जो एंगल्स आपको अंदर की साइड बनते हुए दिख रहे हैं. ओके, ऑल द एंगल्स विच हैव द लाइन सेगमेंट एम एन. अगर मैं पी क्यू की बात करूँ, पी क्यू एज वन आर्म are known as interior angle as they lie between the two lines. दोनों लाइन्स के बीच में हैं, that's why we can say that it's a interior angle. Okay, now what is interior alternate angle? So of the interior angle, the angle that are on the opposite side of a transversal. See which angles are opposite side. So these angle are opposite side of a transversal, so it's called the alternate angle. Okay, and same, this angle is alternate to this. Okay, understand, these are called alternate angle, interior alternate angle. Okay, in 5th chapter we learn about interior alternate angle and exterior alternate angle, and we also learn what is corresponding angle. Okay, and how the line will be parallel to each other. Okay, we learn that things.
Okay, understand? Now exterior angle, all the angle which do not have the line segment PQ के अंदर की साइड बिटवीन नहीं है, that are called exterior angle. Okay, understand? exterior alternate angle सेम, अगर हम exterior alternate angle की बात करते हैं, so here these are exterior alternate angle and these are exterior alternate angle. ओके, इसका अल्टरनेट एंगल होगा ये वाला, इस वाले का अल्टरनेट एंगल होगा ये वाला. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे वी कैन से अल्टरनेट एंगल्स. नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल? द पेयर ऑफ एंगल ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. मीन्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जो एंगल्स होते हैं, बट एक इंटीरियर होगा एंड वन एक्सटीरियर. सी, इफ this is the transversal, then what is corresponding angle? These and these are corresponding angle. Okay, and same here, अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड की बात कर रहे हो तो ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल होगा. अगर हम दूसरे एंगल्स की बात करें, सो दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग टू दिस and these corresponding to this. Okay, understand? So these are the corresponding angle. Okay, understand? Now, so let's see, we know what is corresponding angle, what is alternate angle, what is interior angle. Okay, we all are know, and what is parallel lines. If two lines are cut by a transversal, then the corresponding angle are equal. Okay, this is the axioms for parallel line. Okay, and conversely, अगर दो straight line हैं in such a way that the corresponding angle are equal, then the two straight line are parallel. Okay, so first of all we see what is how to construct of a line parallel to a given line through a point not on the plane, on the line. ओके, अगर इस टाइप से कोई लाइन पॉइंट है जो लाइन पर नहीं है, सो हम उसको किस टाइप से भी कर सकते हैं बच्चों? टेक अ शीट ऑफ पेपर, मेक अ फोल्ड, दिस फोल्ड रिप्रेजेंट लाइन एल. वो फोल्ड क्या कहलाएगा? एल लाइन बताएगा. अब अगर मुझे इसके करस्पॉन्डिंग, सी ये लाइन आपको एल दिख रही है. ओके, नाउ अनफोल्ड द पेपर, मार्क अ पॉइंट ए ऑन द पेपर आउटसाइड. एल के बाहर की साइड आपको पॉइंट ए बताना है. Okay, now fold the paper perpendicular to the line such that these perpendicular passes through A, namely the perpendicular AN. Okay, इस पॉइंट से हमें उसे क्या करना है? फोल्ड करना है. ओके, फोल्ड तो कर सकते हैं आप लोग सब पेपर को. देन ओपन द पेपर. नाउ मेक अ फोल्ड perpendicular to this perpendicular through point A. Name the new perpendicular line M. Now L is parallel to M. सो हम ए पर से भी अगर एक और फोल्ड करेंगे, सो एल और एम क्या रहेंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे. विच प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन कैन हेल्प यू हियर टू से दैट लाइन एल इज पैरेलल टू एम. सो वी नो बाय लाइन्स एंड एंगल वाला चैप्टर जो था हमारा, चैप्टर नंबर 5, वहाँ हमने पढ़ा था यू कैन यूज एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन टू मेक दिस कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली. ओके, सो आप कौन कौन से एक्सियोम्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें याद करना पड़ेगा. इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, देन द अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सेम angles of same side of a transversal is 180. Sum of angle of same side of a transversal is 180. ओके, सो हमने अगर ये ट्रांसवर्सल बताया है, सो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से कोई भी हमें एक बतानी है कि वो दोनों लाइन पैरेलल हैं. वो हम बताने के लिए क्या लेंगे? या तो हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, या हम बता देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, या हम बता दें कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के दोनों एंगल्स का एडिशन कितना है? 180 है. देन वी कैन से दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, अंडरस्टैंड? सो नाउ सी हियर, अब आप इससे खाली आप कंपास और रूलर की हेल्प से कैसे बनाएंगे? अगर हमने एक लाइन बनाई L और आउटसाइड एक पॉइंट लिया A,
Okay, if I draw a point A outside it, let's see with some. So here construction of a line parallel to a given line through a point not on the line. Okay, so what we can do here, first of all take a line, say L. This is our line. Okay, say the name of line is L. Now take any point outside it. You can take any point or call that point is P. ओके नाउ आपको इस P पर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. ओके जो L के पैरेलल हो. ओके नाउ ड्रॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, P को L से मिला देंगे. ओके एंड जो आपको न्यू पॉइंट मिला यू कैन नेम देम दैट इज़ Q. ओके यू कैन नेम दैट इज़ Q. आपको ट्रांसवर्सल बनाना है. ओके आपको ट्रांसवर्सल बना करके आपको पता है कि दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. ओके इफ़ यू प्रूव इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके सो हियर अगर हमारे पास में Q पर एक एंगल बन रहा है, सी हियर Q पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है, सेम एंगल अगर हम P पर बना दें तो हमारी वो दोनों लाइन्स कैसी हो जाएंगी, पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगी. ओके अंडरस्टैंड. सो व्हाट वी कैन डू हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, P पॉइंट ले लिया. P पर से हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो Q से L से पैरेलल है. ओके सो व्हाट वी कैन डू हियर, टेक अ कंपास एंड टेक इन एनी आर्बिट्ररी रेडियस or convenient radius you can take and Q as a center, draw an arc. Okay Q as a center, draw an arc. now सेम आपको क्या करना है, उसको रेडियस को चेंज करे बिना P को सेंटर लेकर के एक और आर्क ड्रॉ करना है जो PQ को कट करता हुआ जा रहा है. ओके अंडरस्टैंड. नाउ हियर आपके पास में Q पर जो एंगल बना है आपको सेम एंगल बनाना है P पर भी. ओके सो व्हाट कैन यू डू हियर, जो हमारा Q पर एंगल बना है हम उसको मेज़र करेंगे. हाउ मच दिस एंगल इज़. ओके द साइज ऑफ एंगल इज़ आपको पता चल रहा है, आपको कंपास उतना ही खोलना है. नाउ PQ से PQ लाइन पर जहाँ पर P वाला आर्क कट कर रहा था वहाँ से आपको सेंटर लेना है. ओके कौन सा सेंटर लेंगे आप, जहाँ पर वो P वाले आर्क को PQ को जो कट कर रहा है आर्क. ओके सो आपको दिख रहा है वहाँ पर आपको P वो वाले पॉइंट को सेंटर लेना है एंड कट दैट आर्क. ओके आपको उस आर्क को कट करना है. सी PQ वाली लाइन पर जो दिख रहा है आपको पॉइंट, आपको उस लाइन को कट कर देना है. ओके नाउ दिस पॉइंट जो आपको पॉइंट मिला है यहाँ से आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है. ओके यू कैन ड्रॉ द लाइन. Carefully draw a line and these line you can name them M. ओके सो नाउ ये जो एंगल हैं दोनों इक्वल हैं जो आपने बनाए हैं. ओके मीन्स इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. इफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट L is parallel to M. ओके अंडरस्टैंड. so you can say that L is parallel to M because interior alternate angles are equal. So student, let us see how to draw a perpendicular. Okay so take a line and take a point P on it. Take an arbitrary radius and draw an arc. Okay don't change the radius of compass. and जो पॉइंट आपको मिला है वहाँ पर से आपको रख करके सेंटर लेकर के आपको एक आर्क और ड्रॉ करना है. फिर आपको एक पॉइंट मिल गया है वहाँ से आपको एक और आर्क ड्रॉ कर लेना है. नाउ डोंट चेंज द रेडियस. ओके अंडरस्टैंड. आपको कंपास की रेडियस चेंज नहीं करना है. ओके एंड ड्रॉ दैट आर्क and cut the previous arc.
दिस इज जो पॉइंट आपको मिला है, ये पॉइंट आपका P पर जब आप मिलाएंगे, सो दिस इज परपेंडिकुलर, और वी कैन से दैट इट्स अ 90 डिग्री एंगल. ओके, दिस इज परपेंडिकुलर टू P. ओके स्टूडेंट, एंड सपोज द लाइन इज L. ओके, so we can say that PQ is a perpendicular, QP is perpendicular. Now let's see exercise 10.1. Question number first, draw a line, say AB, take a point C outside it, through C, draw a line parallel to AB using ruler and compass only. Okay, so first of all we can draw a line AB. Okay, AB आप बना लेंगे पहले, and you can name them A and B. Okay, and take a point C outside it. आपको आउटसाइड पर कोई पॉइंट C लेना है. सपोज दिस इज अवर पॉइंट C. ओके, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB. नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB. ओके, थ्रू C से होती हुई जानी चाहिए वो लाइन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, हमने जो कंस्ट्रक्शन सीखा था, हम C पर से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB पर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ड्रॉ अ लाइन. हमको इस टाइप से कंस्ट्रक्ट करना है, AB के पैरेलल लाइन बनाना है जो हमें C से होती हुई जाती है. ओके, सो वी कैन ड्रॉ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल्स. ओके, सो and when interior alternate angles are equal, then we can say that the two lines are parallel to each other. ओके, सो हियर हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट C है, हम उसको क्या करेंगे, AB से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन देम. ओके, एंड टेल देम द नेम D. ओके, दिस इज आवर नेम D. सो वी कैन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB. ओके, अंडरस्टैंड. Now take a compass and take an arbitrary radius and center D as a center, and draw a arc to cut AB and C. DC जो AB और DC दोनों को कट कर रहा हो उस वैसा हमें आर्क ड्रॉ करना है. ओके, आर्बिट्ररी रेडियस लेकर के. ओके, अब C को भी हमें बनाना है, C पर हमें सेम एंगल बनाना है, तो टेक अ C एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क जो DC को कट करे. आपको रेडियस सेम रखनी है. ओके, नाउ अब आपको DB के बराबर, ये जो आपका एंगल दिख रहा है इसके बराबर की आपको क्या लेना है, रेडियस लेना है. ओके, ओपन योर कंपास विथ दिस रेडियस. आपको इतनी ही रेडियस का आपको क्या करना है, ओपन करना है कंपास को. ओके, ओके, नाउ जो C से आपने सेंटर लेकर जो आर्क खींचा था वो DC पर कहाँ आपको एक पॉइंट मिल रहा है. टेक दैट पॉइंट एज अ सेंटर एंड कट योर प्रीवियस आर्क. ओके, नाउ दिस पॉइंट हैविंग, अब इस पॉइंट को आपको C से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है. ओके, और दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए. ओके, नाउ ड्रॉ एन लाइन विथ थ्रू C से होते हुए उस पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है. ओके, these two angles are equal, so we can say that interior alternate angles are equal. So AB is parallel to, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस लाइन को. AB is parallel to suppose EF. Okay, so you can write AB is parallel to EF or EF is parallel to AB. Now let's see question number 2. Draw a line L, draw perpendicular to L at any point on L. जो L पर पॉइंट हो वहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ओके,
ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज ए पॉइंट एक्स। अब पहले हमने एल लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, अब इस पर हमें कोई पॉइंट लेना है। सपोज हमें ए बी, हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए। ओके, नाउ ऑन एल एट एनी पॉइंट ऑन एल, अब हमें इस पर कोई पॉइंट लेना है। सपोज ये पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया। ओके, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ से ए को सेंटर लेकर के हमें एक आर्बिटरी रेडियस का मतलब होता है कन्वीनियंट रेडियस, जो आपको लेना हो। ओके, सो आपने लेकर के क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है जो लाइन एल को 2 पॉइंट पर कट करे। ओके, सो यहाँ पर आपको इस लाइन एल पर 2 पॉइंट मिल गए। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ टेक दिस पॉइंट एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क। अगेन आपको एक और पॉइंट मिल गया, वहाँ से आपको आर्क ड्रॉ करना है। ओके, सो फर्स्ट आर्क इज 60 डिग्री एंड अनदर आर्क इज 120 डिग्री। नाउ दिस 2 पॉइंट, आपको जो 2 पॉइंट मिल गए हैं इनको सेंटर लेना है और आपको ऊपर की साइड विदाउट चेंजिंग रेडियस आपको आर्क ड्रॉ करना है। ओके, अब ये प्रीवियस आर्क को आपको कट करना है दूसरे वाले पॉइंट पर सेंटर लेकर के। नाउ जो पॉइंट आपको मिला, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट बी। ओके, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए। हमने क्या किया, ए से उस पॉइंट को मिलाते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। अब हमें 4 सेंटीमीटर अवे लेना है एल से। ओके, सो हमें कोई एक पॉइंट एक्स चाहिए जो 4 सेंटीमीटर अवे है। कहाँ से, एल से। लाइन एल से 4 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, उसका डिस्टेंस एल से कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ टेक अ कंपास और यू कैन चूज, आपको 4 सेंटीमीटर का ओपन करना है आर्क अपने कंपास पर। ओके, सी we can open 4 centimeter. Now A is a center and cut the previous line. अब आपने जो कट करा है वहाँ पर जो पॉइंट मिला वो पॉइंट आपका है X. This point is X. Okay, this is your X point. This is 4 centimeter away. Okay, now this X से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है M. अगेन अब हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, सॉरी हमें यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है एक्स से होती हुई जो जा रही है। ओके, अगेन वही कॉन्सेप्ट, हमें क्या करना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल बता देना है। ओके, नाउ हियर हमें ये वाला एंगल इक्वल बताना है किससे, ये जो भी एंगल है उसको हमें इक्वल बताना है यहाँ पर जो एंगल बनेगा उससे। ओके, अंडरस्टैंड। एक्स वाले एंगल से हमें इक्वल बता देना है। ओके, सो हाउ टू ड्रॉ, वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों एंगल्स को अगर इक्वल बताना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है अब हम क्या करेंगे, हमारे जो पहले हम एक छोटा वाला एंगल ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमारा कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा सुंदर दिखे। नाउ हमें वही एंगल ड्रॉ करना है एक्स से, जो ए सेंटर लेकर के हमने आर्बिट्ररी रेडियस लेकर ड्रॉ किया है, सेम एंगल हमें एक्स से ड्रॉ कर लेना है जो हमारी एक्स ए को कट करे। ओके, विदाउट चेंजिंग द रेडियस। ओके, नाउ अब आपने जो ए से एंगल ड्रॉ किया है आपको उसके इक्वल रेडियस, उसके इक्वल आपके कंपास को ओपन कर लेना है। ओपन योर कंपास विथ दिस रेडियस। ओके,
नाउ आपको जो एक्स ए पर जो पॉइंट मिला है, जो एक्स सेंटर लेकर आपने जो आर्क खींचा था, वहाँ पर उस पॉइंट पर रख करके उस आर्क को कट करना है। ओके, इस पॉइंट पर रख करके, अंडरस्टैंड। नाउ कट द प्रीवियस आर्क। अब आपका जहाँ पर कट हुआ है उसको एक्स से आप मिला देंगे, एंड दिस इज योर पैरेलल लाइन टू एल। ओके, ड्रॉ द लाइन। नाउ ड्रॉ द लाइन। इन दोनों पॉइंट से मिल करके आपको लाइन ड्रॉ करना है। केयरफुली आपको देखना है, एक्स से होती हुई जानी चाहिए वो लाइन। ओके, अंडरस्टैंड। वो लाइन कहाँ से होती हुई जानी चाहिए? एक्स से होती हुई, अंडरस्टैंड। सो दिस इज योर लाइन एम। कौन सी लाइन है? एम। बुक में आपको दी हुई है, दैट इज योर लाइन एम। ओके, सो वी कैन राइट एल इज पैरेलल टू एम। ओके, understand?